सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Now we'll take the 12th shloka of 12th chapter, which summarizes the entire teaching. Shreyo hi jnanam abhyasat श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्. त्यागः शान्ति अनन्तरम्। So that's the whole that ladder is, or we can say the sequence. Abhyas se shuru hoke Shanti Anantaram, uninterrupted peace, which we can summarize as Anand. Anand is nothing but uninterrupted peace. अगर ये हो जाए, जिसको मतलब हमारी शांति आती जाती रहती है, कोई सुख दुख के साथ, ठंड गर्मी के साथ, अगर वो सब सहना आ जाए, तितिक्षा, तो फिर शांति बने हमेशा बनी रहेगी. जब शांति इज अनइंटरप्टेड, दैट इज कॉल्ड आनंद, एंड दैट इज भगवान स्वरूप सच्चिदानंद. एक्चुअली टुडे that's what Bhagavan is summarizing the chapter with that thought. Now that Arjun's Pratana, which is our Pratana too, the seventh shloka of second chapter. Karpanya dosho upahat svabhavah कार्पण्यदोषो उपहत्स्वभावः prachami tvam dharma sammudchetah पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. शिष्टेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. Arjuna is saying, Bhagavan, I'm deluded. I'm confused about where should I go. Like which most of us, like, is it right or is it wrong? So I'm confused between the prayers and Shreyas. So guide me to Shreyas, and how I come to you as Shishya. Shishya means the one who surrenders the ego. मेरे पास कुछ नहीं है, I have a clean slate. Now I come to Shadhiman Tvam Prapannam. So मेरी बुद्धि को आप give me the right direction, so I know what is Shreyas. Right? So with that we'll continue with 9th chapter. But Chitu, sorry that the shlok number 14th of second chapter, which is Titiksha, Matra Sparsha, not 7th. 7 is Arjun's Pratana. I was a little off. So 14th shlok, which has Bhagavan says Titiksha, and 47th shlok, which is Karmanyeva Adhikaraste. So those two shlok are acceptance and expectation. Yeah, that decides the emotional quotient, EQ. We'll come back to that some other time. So we are on 9th chapter. 9th chapter we can conclude today because we are almost at the last two shlok of the chapter. So last time we saw shlok number 30 and 31. So that in 30 shlok, there is one word Bhagavan has used at the end. Samyak vyasitah. Samyak means properly, and vyasitah means determined. And we talked about that sankalp. So Bhagavan says, the one who has that sankalp, and then 31st shlok we'll read in continuation, right? Kshipram bhavati dharmatma. On ninth chapter, 31st shlok. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। Soon he becomes righteous and attains eternal peace, O Kaunteya. Know for certain that my devotee never perishes. Yeah.
So Bhagavan says never perishes means the one who become Dharmatma. And a very powerful word, Bhagavan. Dharmatma is a very popular word used in many of discussions and literature. Dharmatma in India में तो एक दो मूवी भी आ चुकी धर्मात्मा नाम की. So Dharmatma means righteous is the English translation. Atma, he is not here just talking about the Atma. He is talking about the consciousness, the character, we can say. So the Bhakt is whose character is full of dharma. And dharma means, and that's what dharma ki definition. Dharma means satya is dharma, karuna is dharma, dhrati is dharma. So all these attribute of dharma decides the dharma. Dharma is not a separate thing. But if I am practicing truth all the time, that means I am practicing dharma. So there is no separate dharma. So Bhagavan says, ये जो मेरा भक्त है इसने संकल्प दृढ़ कर लिया. पिछले श्लोक में बोला सम्यक व्यवस्थितः. He's committed to, of course, आध्यात्मिक यात्रा, और that's what Bhagavad Gita is, Bhagavan is telling. But he is committed to that आध्यात्मिक yatra, right? So then he becomes Kshipram instantly. Kshipram is instantly. Instantly तो नहीं होगा, लेकिन it's like that. When we boil water, water is always converted to steam at 100 degrees. Standard water, like pure water, right? But it takes 1 degree or whatever degree, maybe 20 degree water to 100 degree, and then the moment it reaches 100, it becomes steam. But there is an effort needed up to 100 degree. 100 degree instantly ho jata hai. When somebody looks at 100 degree, oh, water has become steam. But it has taken from 20 degree or whatever, 1 degree, 0 degree to 99 degree. That effort is needed. Then it becomes. So भगवान यहाँ पर क्षिप्रम बोलने में ऐसा है, फिर वही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी साधु महात्मा के पास गए, उन्होंने आपको ऐसे कुछ हाथ में दे दिया और काम हो गया. ना, वो ऐसा नहीं होता है. वो सिद्धि उनको आती है तो उन्होंने कुछ किया, सिद्धि आती है. आपको ऐसे नहीं दे सकते हैं. दैट्स कंफ्यूजन. सो क्षिप्रम से मतलब ये नहीं कि आप गए और मंदिर में दर्शन किए और काम हो गया. ऐसा नहीं. भगवान से उसके पीछे साधना है. सो वी सॉ दैट लास्ट टाइम, वो जो श्लोक था कबीरदास जी का, जो तिल्ली में तेल है, जो चकमग में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग. कहीं जाना नहीं है. क्षिप्रम से मतलब आपको खुद रियलाइज. दैट्स व्हाई वी कॉल इट आत्मज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन. तो ये धर्मात्मा होने का मतलब है कि दिस पर्सन बिकम सेल्फ रियलाइज. आई नो दैट आई एम द ट्रूथ. आई डोंट हैव टू प्रैक्टिस ट्रूथ. आई एम द ट्रूथ. उसमें क्या एफर्ट क्या लगाना है? तो एफर्ट शुरू में लगाना है, बट द डे आई रियलाइज आई एम ट्रूथ माई सेल्फ, मैं ही सत्य हूँ, डन. सो दैट स्टेज विल हैपन. दैट इज क्षिप्रम. बट यू हैव टू डू तपस. अब तिल्ली में तेल है तो कबीरदास जी कह रहे थे, उनका कहना है कि तिल्ली में तेल निकालना पड़ता है. सेसेमी सीड तो रखा हुआ है तो उसमें दिखता थोड़ी तेल. यू हैव टू डू समथिंग टू, दैट इज कॉल्ड तपस, एफर्ट. दैट इज भगवान ने 30th श्लोक में बोला है, सम्यक व्यवस्थित, properly committed to, or proper effort. And that is sadhana. That's what we are doing. Swadhyaya is part of that, right? And chakmag mein aag. I mean, there are two pieces of a stone. You don't see spark, but when you rub them in a proper way, rubbing that effort, then you'll see the spark. That is called tapas. So that's why तेरा साई तुझ में है, तेरे अंदर ही है वो, तू जाग सके तो जाग. जागना means that awareness. If you are aware, you will see that, oh, right, tattvamasi, that you aham brahmasmi. But the effort is needed. So क्षिप्रम से एकदम पढ़ने में तो ज़्यादा immediately हो जाए, ऐसा नहीं. उसके लिए भगवान ने बताया. And धर्मात्मा means the one who has shantim nigacchati, who has uninterrupted peace. That is धर्मात्मा. धर्मात्मा में साधु, बहुत सारे वर्ड यूज हैं, वो भक्त कह सकते हैं उसको. एंड भगवान से न प्रणश्यति. देन वो प्रणश्यति मीन्स यू आर नॉट लॉस्ट इन द स्पिरिचुअल पैथ. अदरवाइज क्या होता है कि कभी हम लोगों के टिपिकल एग्जाम्पल देते हैं, कभी आप शिव जी की पूजा करेंगे, भी अरे यार कुछ मामला जम नहीं रहा है तो हनुमान जी कर लेंगे, फिर जम नहीं रहा है तो दुर्गा जी कर लेंगे, तो जम नहीं रहा है. ऐसा नहीं है, एक ही भगवान है वो. ये confusion is like pranashyati. And sometimes people are very like not spiritual, but बहुत ज़्यादा पूजा करने लग गए, फिर कुछ नहीं हुआ तो पूजा बंद कर दी, अरे भगवान मेरा काम नहीं करते. This is all
pranashyati. But this one is ekdam steadfast. क्योंकि एक ही भरोसा है, भगवान जो भी वो कर रहे हैं अच्छा या बुरा है ही नहीं, कुछ भी अच्छा बुरा, whatever is happening, and that is the quality of a bhakta. So with that भगवान ने बताया कि that is धर्मात्मा. But next two श्लोक a lot of like the translation, lot of people discuss a very kind of debating translation of the shlok, but I have a very clear, like simple understanding of the shlok. We'll go over that, right? So next shlok is 32. Mam hi partha vyapashritah माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ye api syuh papayonah ये अपि स्युः पापयोनयः striyo vaishyas tatha shudrah स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा te api yanti param gatim. ते अपि यान्ति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनियों वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। For those who take refuge in me, O Partha, though of sinful birth, women, Vaishyas, even Shudras, they also attain the supreme goal. Yeah, now this shlok has a lot of translation, like why Bhagavan is saying women, what a Shudra, Papyoni. So Bhagavan Krishna is a revolutionary teacher. Bhagavan is not saying that they are lower than, and even then, see, a lot of translation of this shlok is that even these people can get it. Oh, no, it is the other way around. Bhagavan is a revolutionary, because even today, there are traditions in Bharat. They say that the ladies cannot get moksha. You have to be born as men to get the moksha. Even today. And they say that, right? Publicly they say that. You cannot go to Hanuman Mandir. Lady cannot do a Gayatri Jap. Those kind of things still there, ladies. Shudra, if you are untouchable, you cannot go to such and such mandir. Even today. But Krishna is a revolutionary teacher. He said, no. There is no like distinction here in Bhakt. Bhakt, all are same. So Bhagavan says everybody is entitled. So पहले this was written 5,000 years ago, तब तो बहुत prevalent था society में कि ये यही कर सकते हैं, ये यही कर सकते हैं. Like there is a classes. There are time of society like social ill we call it, but there are always time. So Bhagavan says no. There is no division. There is no class. Everybody. मेरा भक्त अगर कोई है, तो he or she is entitled to achieve, to get that peace. जो ऊपर भगवान ने बोला है शांतिम निगच्छति, और धर्मात्मा हो सकता है. तो धर्मात्मा होने के लिए there is no caste or creed or gender or anything. पर नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने और कंफर्म कर दिया है कि किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या ब्राह्मणा पुण्या किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षया तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भी भक्तिजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। How much more than holy Brahmins and devout royal sages, having reached this transient, joyless world, you worship me. Yeah. So Bhagavan is like continuing from the previous shlok. So now in combined two shlok, Bhagavan is saying there is no like demarcation or there is no definition of कि ये कर सकता है, सब कर सकते हैं पूजा. भगवान Shri Krishna is a revolutionary teacher, right? जब वो छोटे से तो we know that गोवर्धन पूजा वाला जो इंसिडेंट है, they used to do puja of Indra, and he said इंद्र की पूजा क्यों करते हो, गोवर्धन की पूजा करो. ये हमें like Govardhan gives us
vegetation, our cows go there, they eat and it gives us protection. So let's go do Govardhan Puja. काफी विरोध हुआ था उस समय, उनके पिताजी ने भी बोला, कृष्ण नो. तो कृष्ण ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं जो they bring the change in the society, and that's why these two shlokas is very clear that there is no demand. Everybody is entitled to do jap mera jap, and everybody is entitled to be a dharmatma, or we call it moksha, whatever the goal of spiritual sadhana. Different name, but कोई शांति बोलता है, कोई आनंद बोलता है, कोई मोक्ष बोलता है, कोई निर्वाण बोलता है, कोई जीवन मुक्ति, एक ही चीज है. But everybody is entitled as long as the sankalp that सम्यक व्यवस्थिता, you're committed. मतलब ऐसे संकल्प, जैसे हमारे यहाँ तो पूजा हम लोग करते हैं मंदिर में, तो संकल्प, अटल बिहारी वाजपेयी एक गीत गाते थे, शपथ, संकल्प में शपथ लेते, ओथ. बट ओथ तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन यू होल्ड ऑन टू द ओथ टिल द गोल इज रीच्ड, दैट इज शपथ, राइट. जैसे अभी न्यू ईयर हुआ था, रेजोल्यूशन, आई मीन टिपिकली वी रीड इन इंटरनेट दैट 70 or 80% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर ब्रोकन विद इन 1 month or 2 months. दिस इज वेरी स्टैंडर्ड. जोश आ जाता सबको कि चलो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, गायब हो जाता है 1-2 महीने में. वेट लॉस, फिर थोड़ा जलेबी वलेबी खाई, सब हो गया है, वेट लॉस पूरा. सो अटल बिहारी वाजपेयी गाना कहता है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, लहर के साथ बहना तो सरल है प्रतिकूल बहना ही कठिन है. लहर मीन्स व्हेन द फ्लो, द स्ट्रीम, it is easy to swim in the direction of a stream when the stream is flowing, the river. It's very difficult to swim against the direction. अगर मुझे इधर जाना है तो you have to put an effort, right? तो शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है. कठिन निभाना means you have to swim against the stream, right? है सरल आंसू बहाना मुस्कुराना ही कठिन है. रोना तो बहुत आसान है, लेकिन मुस्कुराना बहुत कठिन है. मुस्कुराना में डिफिकल्ट कंडीशंस में सक्सेस और फेल्यूर, दैट्स व्हाट समत्वम योग उच्यते, भगवान के अर्जुन को कहते हैं. तो आंसू बहाना तो बहुत सरल है, मुस्कुराना ही कठिन है. तप के सहारे इंद्र बनना तो सरल है. तप के सहारे इंद्र बनना में यू बिकम ए किंग, राइट. इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है. व्हेन यू रीच समवेयर द एरोगेंस, it's difficult to forget the arrogance. It's very easy. It could be easy to become a king, कुछ एफर्ट लगा के, बट वहां पहुंच के मत भुलाना ही कठिन है. वहां पहुंच के एरोगेंस ड्रॉप कर देना, दैट इज डिफिकल्ट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. वी ऑल नो दैट, ड्रॉप द एरोगेंस, राइट. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ईगो, टू गिव अप ईगो. सो दैट्स व्हाई साधना का पथ कठिन है पर निभा पथ, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है. साधना का पथ कठिन है. अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, इट इज नॉट, एंड ही प्रूव्ड इट, आई मीन बाय हिज कैरेक्टर की दोस थिंग्स कैन बी डन बाय पीपल लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, गुड ग्रेट लीडर, राइट. एनीवे, सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड एज लॉन्ग एज शपथ लेके उसको निभा रहे हो. डजंट मैटर you are lower caste, higher caste, no gender. All these things used to be prevailing in the society. Bhagwan is clarified in these two shlokas. हालांकि इसके translation, if you read translation of people who believe, they'll come back. Oh, look at this. Bhagwan is saying you have to be this to do. No, it's not like that. Bhagwan is very clear here. Yanti param gati. सबको मेरी गति प्राप्त हो सकती है. Param gati means the highest. That's what this chapter is. Raj Vidya, the highest knowledge you will get it. With that last book of this chapter, which is kind of a not summarizing the teaching. Teaching will continue, but this particular topic where Arjuna asked the question and Bhagavan is answering. The 34th shlok, which is the last shlok of this chapter. Manmana bhava madbhakto. मनमना भव मद्भक्तो. मद्याजी माम नमस्कुरु. मद्याजी माम नमस्कुरु. मामे वैश्यसि युक्ता एवं. मामे वैश्य युक्त वैभवम्. आत्मानं मत्परायणः. आत्मानं मत्परायणः. केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा
शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होएगा। मतलब Fix your mind. Oh, sorry. काफी टिप्पणी के साथ है, सॉरी। No. Fix your mind on me, be devoted to me, sacrifice to me, bow down to me, thus uniting yourself to me, taking me as the supreme goal, you shall come to me. Yeah. So this is kind of Bhagavan started this chapter with Raj Vidya. Told Arjun Bhagavan, because Arjun asked this question in the 8th chapter. He what is this knowledge? And he continuing from the 8th chapter, Bhagavan in the beginning of the 9th chapter, he says, Idam te tu, pehla shlok, 9th chapter ka first shlok, Idam te tu guhyatamam pravakshami anasuyave ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। सो ये जो तेरे को बताने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी गुह्यतम, वेरी सीक्रेट है, एंड राज विद्या राजगुह्य, एंड दिस इज अ टॉप मोस्ट नॉलेज यू कैन गेट। अभी कुछ निकलता नहीं है, जब पढ़ते हैं इतना आसान है, बट उन्होंने बताया कि इट इज इफ यू अंडरस्टैंड दिस सीक्रेट देन दिस नॉलेज इज राज विद्या। एंड वी सॉ द सीक्रेट वेरी मेनी वेज वी कैन से दैट। Many shlok in this chapter are there. Bhagavan says, I am in everyone, but not everyone in me. It's like a mind-boggling kind of shlok, but it's very clear. That's the secret, right? The gold is like that. The ornament are there because there is a gold. So one is there, other one is there. Other one may not be there, but one will always be there. Ornament may not be there, but gold will always be there. Somebody who doesn't know, last time we saw, doesn't know what is a chain. And if you show that person, here is a chain, he'll say, oh, this is gold. Because it's a golden chain, right? So the gold is the essence. That's what Bhagavan is saying, ki, मैं सब में हूँ, but सब मुझ में नहीं. That means chain may not be there. Bhagavan is in all of us. The entire world, sansar, apara prakriti. But apara prakriti may not be there, but Bhagavan still will be there. Cause and effect. So effect may be there, effect may not be there, but cause will always be there. Because of cause, effect is there. Karya karan ka siddhant hamare bolte Vedanta. And that is the secret. So once अगर इतना समझ जाएगा, that's the knowledge. It's that simple. In this shlok, he is breaking down. Like, so we have to break this shlok into. So first thing is Bhagavan says, a little bit order we have to change. Different acharyas have different order, but I like this order, right? पहली चीज भगवान बोलते हैं मद भक्त भव, means you have to become a devotee, and he has given the qualification of devotee in previous shlok. And the 10th chapter when we go to, पूरा चैप्टर ही भक्त की बात है, बहुत प्यारा है. तो भगवान उसमें एकदम डिस्क्राइब करेंगे भक्त क्या है. But here he is said the one who is committed. भक्त means who is committed, who is ready to share. भज धातु से आया, but भक्त means who is ready to share पूरी कॉन्शियसनेस भगवान के लिए. दैट इज भक्त. भगवान से पहली चीज है मत भक्त भव, मीन्स भक्त का मतलब है जो प्यार भी करता है. भगवान से प्यार करना पड़ेगा. इट्स लाइक दैट. सो इन दिस सेंस व्हाट भगवान इज मत भक्त भव मीन्स भगवान इज अ मीन्स इन दिस सेंस. मीन्स यू डू द पूजा. हमने इसीलिए मूर्ति बनाई है. अभी हमने इसीलिए भजन बनाए हैं. अभी छोटे बच्चों को हम अभी विद्या मंदिर में सिखाते हैं. Many of you have gone through the Bal Vihar program. The best thing kids like is कीर्तन, भजन. बच्चों के लिए पता, बच्चों को घंटी हाथ में दे दीजिए, भजन करिए, फिर उनको प्रसाद अच्छा लगता है, कुछ पूजा हो रही तो उसके बाद प्रसाद. So all these things are very primitive or early stages, but we have to grow out of that. The puja is not just prasad or bhajan kirtan. Bhajan kirtan are means.
सो पर लेकिन वो कृष्ण की मूर्ति चाहिए, बाल कृष्ण चाहिए, और ऐसा कुछ करके कुछ गणेश, छोटे से गणेश बना दिए, गणेश बना रहे हैं उनको भाई। सो ऑल दिस, सो हियर भगवान इज अ मीन्स भक्त के लिए। तो भगवान सेज कि मद भक्त भाव मीन्स यू कैन यूज मी एज अ मीन्स, एज अ साधन, दैट इज फाइन। भक्त के लिए भगवान साधन होते हैं, कृष्ण की मूर्ति है, राम की, जो भी मानते हैं भक्त उन्हीं की पूजा करते हैं, विच इज फाइन, बट यू हैव टू ग्रेजुएट, राइट। सो नेक्स्ट भगवान सेज मत परायण, जो शब्द आगे यूज किया मत परायण, यहाँ पर दो मद मीन्स मेरा, मेरे परायण। परायण बड़ा प्यारा शब्द है, संस्कृत का बहुत जगह यूज होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं हमारे संस्कृत के श्लोक या भजन। पर आयन, पर मीन्स हायर, आयन मीन्स यात्रा, उसी से रामायण, राम आयन, रामायण। आयन मीन्स मूवमेंट, सो मूवमेंट टुवर्ड्स व्हाट, पर, हाईएस्ट, दैट इज द गोल। सो मत परायण मीन्स, पहले बताया मद भक्त मीन्स आई कैन बी द मीन्स, बट हियर आई एम द गोल, दैट्स इट। सो भगवान से कि नॉट, डोंट स्टॉप एट जस्ट माई मूर्ति। आंख बंद करी तो मूर्ति भी चली गई, ऐसा कहते हैं स्वामी राम तीर्थ, बड़ा फेमस है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू रेड और यू हर्ड दैट। रामकृष्ण राम तीर्थ जो थे विवेकानंद जी के गुरु, उनको ऐसा कहते थे कि वो जब ध्यान में जाते थे तो काली ही दिखती रहती थी पूरे टाइम। तो उनके गुरु ने उनसे बोला कि तू काली पे अटक गया है, काली को भी छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कैसे छोड़ना पड़ेगा, इट्स ए फेमस एनेक्डोट, एक्चुअली इट्स नॉट एनेक्डोट, इट्स अ ट्रू थिंग। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन काली तेरे दिमाग में आएगी, तू अपने सिर पे तलवार लेके काली को भी काट देना। तो ऐसा कहते हैं उन्होंने किया, आई मीन ही गॉट हर्ट आल्सो, बट इट्स लाइक ए वेरी हायर लेवल, वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग, बट ऐसा कहते हैं, लिखा हुआ है। सो काली को भी छोड़ना पड़ेगा, दैट इज सो भगवान इज द परम गोल। ये पकड़ के नहीं बैठ जाना मूर्ति को। तो भक्त से फिर भगवान कहते हैं मत परायण, मेरे लिए एकदम टोटल सरेंडर, भगवान इज द ओनली गोल। वो देयर वाज वन पर्सन, उसको किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय भगवान इज द ओनली गोल। तो उस एग्जाम्पल दिया कि इफ देयर इज अ हाउस, आई हैव अ हाउस and there is only one entrance in the house and I have to get inside the house, I have no choice. वही डोर में I'll keep knocking this because there is only one entrance, so I have to keep knocking at the same door because there is only entrance. So he says भगवान is like that, the ultimate goal की सब कुछ वही है, तो मैं भगवान के से ही मांगता रहूंगा, भगवान को ही ध्यान करता रहूंगा, because there is no other door, there is no way. So that's what भगवान से मत पर आया. Then भगवान says once you have bhakt, bhakt means use me as a means, but graduate that I am the only goal. Second said Bhagavan says man manah. Then man manah means constantly focus on that goal. फिर वही deviation नहीं होना चाहिए. Means constant is like the example is given many places, right? If I am traveling from Pittsburgh to Fort Lauderdale and there is a layover in Atlanta, the layover you have to southwest, you have to change the flight, right? So there is a 45 minutes layover, or maybe sometime 30 minutes, or maybe 3 hours. But I don't forget that I have to take the next flight. Again, if I am sitting in that area, I'm constantly watching that board and announcement give my flight, because my destination is in my mind. ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी और फ्लाइट में बैठ जाऊं या भूल ही जाऊं. So that's constantly man mana, constantly Bhagwan is in the mind. And we see many stories, like I love that story we have shared many times, that the Guruji used to tell students that constantly Bhagwan ka naam lete raho. And there will be an exam, right? But tell me if you have not done that. If you have done that, like सुबह शाम माला जपना जो भी देते थे अभ्यास के लिए, कि दिन में 4 घंटे सुबह शाम भगवान का नाम लो, 6 घंटे लो, 10 घंटे लो, and then come and tell me, right? तो एक लड़का आया नेक्स्ट डे, he was crying. He said, गुरुजी मुझसे मिस्टेक हो गई. तो क्या मिस्टेक हो गई? कि आपने बोला था भगवान का नाम पूरे लेते रहो कॉन्स्टेंटली, एंड आई वाज सिटिंग इन द टॉयलेट एंड आई केप्ट चैंटिंग भगवान का नाम. तो अच्छा नहीं हुआ, टॉयलेट में बैठ के, मैंने गंदी जगह पे बैठ के. He said, अरे तू पास हो गया, मैंने भी कभी नहीं किया, मुझसे भी ये नहीं हुआ. You just passed the exam, even I couldn't pass that exam. मन मना, अभी सभी कुछ भगवान है, तो फिर क्या एक्शन कहाँ और बुरा. That's what भगवान is saying. See, मद भक्त
मत्परायण मन मना, कॉन्स्टेंटली फोकस्ड ऑन मी। अभी हमारा क्या होता है, मोस्ट आवर फोकस इज ऑन संसार, कॉन्स्टेंटली वी आर थिंकिंग ऑफ संसार। अभी वेदर खराब हो जाएगा और स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाएगा, ट्रम्प आ गए हैं तो मार्केट ठीक हो जाएगा, और इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है संसार कॉन्स्टेंटली। And we all know, I mean, some of you are, we are all professional, and some of you are even from medical field also. How much, like they say 80% of our thoughts are useless. 80%. हमें पता नहीं, फिर भी हम सोचते रहते हैं। जैसे भगवान ने जब भगवत गीता शुरू किया, द सेकंड 11th श्लोक और सेकंड चैप्टर, राइट, अशोच्यानुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूच नानुशोचन्ति पंडिता। जो हुआ नहीं है और जो हो गया है उसके लिए पंडित सोचते ही नहीं है, लेकिन जो लोग वही सोचते हैं वो पंडित नहीं है। दैट्स मोस्ट ऑफ अस डू, कि जो हो गया उसको सोचते थे, अरे ये हो गया, और हम यहाँ अमेरिका आए थे 50 साल पहले तो इतना बढ़िया अमेरिका था और इंडियन स्टोर नहीं था, और अब कितना अच्छा हो गया है। या भारत जाते हैं तो इतना खराब हो गया, या आगे क्या होगा, 401 के का क्या होगा। या तो आगे का सोच रहे हैं विल लिख रहे हैं अपनी, और उसमें परेशान है, या पीछे का सोच रहे हैं। तो भगवान से इसकी कथा सुना गता सोच नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन को भी प्रॉब्लम थी कि भीष्म मर जाएंगे और अभिमन्यु का क्या होगा और आगे का क्या होगा। तो ये हुआ नहीं है और यू आर वेस्टिंग योर टाइम। युद्ध शुरू नहीं हुआ और तू कितना सोच रहा है। नानुशोचन्ति पंडिता न अनुशोचन्ति। उसके लिए पंडित लोग सोचते हैं, ग्रीफ नहीं करते या दुखी नहीं होते। दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग, मन मना फोकस। एंड देन ही सेज मद याजी। यज शब्द आता है पूजा से। इसके पहले एक श्लोक आया है, हम लोग दैट श्लोक नंबर 27 में भगवान ने बोला था, यद करोषि यद नाशी यद जुहोषि ददाति यद यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कुछ भी जो करता है, तू जो काम करता है, तू जो अश्नाति जो खाता है, जुहोषि जो पूजा करता है, जो ददाति जो दान देता है, ऑल दीज तप करता है, मत पर अर्पणम, मुझे अर्पण कर दे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। एवरीथिंग इज भगवान। एंड दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग। मत परायण के बाद है मद यजी। कुछ भी करता है, एवरी एक्शन। यज से मतलब पूजा भी होता है, उसी से यजन शब्द आया, यज यज्ञ आया। बट द होल एवरी एक्शन इज पूजा। ये जो धर्मात्मा है जो भगवान का, इसकी तो सब कुछ जो करता है पूजा ही है। मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे लिए पूजा ही है। दैट्स व्हाट वी से कॉलिंग। We use a word कि your work should be your calling, work should be worship, बड़ा थिंग is you। लेकिन ये भक्त इससे तो जो होता है वो पूजा ही है, करता ही भगवान के लिए। तो भगवान says and then नमस्कुरु। नमस्कुरु का मतलब नमः, जिससे नमः शब्द आया है। नमः का मतलब होता है नमन, जहां पर आपको सरेंडर कर देना है। भगवान नमस्कुरु मीन्स ड्रॉप द ईगो। लेकिन ये सब होने के बाद, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर सत्व गुण का भी अभिमान शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब सत्व गुण बढ़ाते हैं। देन यू बिकम ओह आई एम द भक्त। तो भगवान से नमस्कुरु, यहां पर सब गिरा दे। सो देयर वाज अ स्टूडेंट, ही वेंट टू अ गुरु। किसी ने बताया कि ये गुरु जो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, इनके पास जाओ। ही वाज लुकिंग फॉर सम गुरु हु कैन मेक थिंग्स सिंपल, एंड ही सेड गो टू दिस गुरु बट यू हैव टू स्टे विद हिम। वो पहुंच गए। अदर स्टूडेंट्स वेर देयर, कपल ऑफ देम टू, बट दिस इज वेरी इंक्विजिटिव। ही सेड कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा, यही सम्यक व्यवसिता, कमिटेड। तो उन्होंने कहा ओके, देयर यू इन दैट, जो इनका आश्रम का प्लेस था, यू मेक अ लिटिल हट फॉर यू राइट, मेक ए हट, विल टेक कपल ऑफ डेज, मे बी अ वीक और 2। तो उसने मेरे लिए बनानी, तो बड़ा खुश हुआ, उसने बना ली बड़ी ब्यूटीफुल हट ही ने। एंड ही सेड आफ्टर अ वीक गुरुजी हट बन गई। उन्होंने कहा ओके नाउ यू ब्रेक इट, तोड़ दे इसको। अरे गुरुजी ने मेरे लिए बनाई थी, बड़े प्यार से तोड़ दी उसे। फिर तोड़ने के 1-2 दिन लगे तोड़ने में। फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी तोड़ दी। उन्होंने कहा फिर बनाओ अपने लिए। फिर बनाई। इट डिड 7-8 टाइम्स। एंड आफ्टर दैट जब हो गया वो, तो उसने गुरु जी को प्रणाम किया और चला गया, आश्रम छोड़ गया, बड़ा हैप्पीली चला गया, आनंद से। तो बाकी स्टूडेंटों ने किसी पूछा, यार तू, तेरे को क्या हो गया? उसने कहा मुझे तो जो होना था वो हो गया। तो उन्होंने कहा तो उसने तो, उन्होंने तो कुछ सिखाया नहीं तेरे को, ना कोई प्रवचन दिया, कुछ दिया। ये 7 दिन तक ये बनाता रहा 8 दिन तोड़ता रहा, ये क्या हुआ? उसने कहा यही तो शिक्षा दी उन्होंने। कितना मुश्किल है अपने लिए बना के लिए फिर तोड़ना, फिर अपने लिए बनाना।
गुरुजी करते रहे, जिस दिन उन्होंने देखा कि मेरा अहंकार गिर गया, अब मेरा कुछ है ही नहीं। दैट्स व्हाट भगवान भगवत गीता में राइट कहते ही है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, समत्वम योग उच्यते। सब में सम है, हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक, दैट इज योग। दैट्स व्हाट द टीचिंग, ही सेड दैट वाज द टीचिंग। प्रवचन से क्या होने वाला था, उन्होंने प्रैक्टिकली मुझे बता दिया कि कितना मुश्किल है अपने लिए बना के तोड़ना। और धीरे धीरे करते करते मैं 8-10 बार में मेरे को लगा कि अरे तो कुछ है ही नहीं मेरा। दैट इज द टीचिंग। सो दैट्स व्हाट हुआ, नमस्कुरु, ये अहंकार को गिराना पड़ेगा। देन भगवान सेज आत्मानम युक्त्वा, इन दिस, ये सब चारों को कंबाइन करें तो वर्ड बनता है निष्ठा। निष्ठा मीन्स एंगेजिंग, एंगेज। सो युक्त्वा मीन्स निष्ठा और एंगेज। युक्त मीन्स engaged. In this manner, if you are engaged in me, with me, माम एष्यसि, तो मुझे पा ही जाएगा। एष्यसि में you will become me. Basically तत्वमसि, तत्व is भगवान, त्वम is you, and in between equal. Then you, and that is the ultimate goal. That is the Raj Vidya. That is the secret, राजगुह। इतना सा सीक्रेट, लेकिन ये करना पड़ेगा, ऐसे कोई मैजिक नहीं होने वाला है। सो भगवान is saying मद भक्त मत परायण मन मना मद यजी मत नमस्कुरु। फिर उसके बाद क्या होगा, आत्मानम युक्त्वा माम एव एष्यसि, यू विल अटेन मी। अटेन मी मीन्स भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद, वी से दैट राइट, यू विल बिकम सच्चिदानंद, वो अनइंटरप्टेड पीस, परम शांति। यू विल अटेन परम शांति, यू विल अटेन परम शांति और परम आनंद। आनंद कह सकते हैं उसको, परम शांति इज आनंद। दैट्स इट, दैट्स द गोल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ राइट, अल्टीमेटली। इसलिए भगवान इज इन द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ एक्शन। दैट इज द रीजन होल भगवत गीता। भगवान बार बार जब ये बोल रहे हैं मैं, मीन्स ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्ण, इज टॉकिंग अबाउट दैट परम सत्ता, जिसको हमने ब्रह्म बोले हैं। कोई अलग अलग नाम देते हैं लोग, नियम नाम देते हैं, समय नाम देते हैं। अभी इलॉन मस्क, वो जो ही इज, पता नहीं वो एथिस्ट भी है कि क्या है, नोबडी नोज व्हाट इज ही। उसको किसी ने पूछा है कि डू यू प्रे, ही सेड आई डोंट प्रे, आई डोंट बिलीव इन गॉड और रिलीजन एंड ऑल दोस थिंग्स। The पहला rocket he launched, that the people went to space for 10 seconds. His shuttle, right, with 4 people went in this shuttle, right. He said on first time when this was launched, it is recorded statement. He said first time when they were coming back, I prayed for their safety. Even Elon Musk kind of person says, I prayed for their safety. वो आदमी जो कुछ नहीं मानता, right, he also says at some stage I prayed. Prayed means there is someone beyond me. Trump, हमने कल हमारे प्रेसिडेंट ने ओथ ली, तो he said God has saved me to serve this nation. पेंसिल्वेनिया में हमारे बटलर में उसको like I got shot, but God has saved me. He doesn't believe in it. He says I am the best, right? He also says God has saved me. कोई तो एक ऐसा सबके हमारे ऊपर है जो विच इज पावरफुल, उसका नाम गीता ने, देयर इज नो अदर टीचिंग। गीता ने इतना क्लियर कर दिया है कि वो कौन है। उसको ब्रह्मन बोलो, उसको आप कृष्ण बोलो, उसको जो भी बोलो, गीता मेक्स इट वेरी क्लियर कौन है वो सत्य, वो सत्ता और वो पावर और वो तत्व। सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग। एंड विद दैट फर्स्ट श्लोक इज द ओपनिंग वेयर भगवान सेज आई विल टेल यू कि व्हाट इज दैट विच मोक्ष से अशुभात। This knowledge will take you away from Ashubhat. Moksha means liberation, or chutti milna. Ashubhat means which is not good for me. What is not good for me? Ashanti is not good for me. It's very simple. सबसे easy किसी को भी समझाना, छोटे बच्चे को भी, what is not good for me? अशांति. Now if you go back track, अशांति आई कहाँ से, then पूरा संसार आ जाता है। ये झंझट से ही शुरू होती है, ये संसार से अशांति आती है, likes and dislikes, anxiety. So that's what भगवान is saying कि अगर ये करेगा, ये 4 क्वालिफिकेशन, बड़ा सिंपल, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। then भगवान says युक्तो माम एव एष्यसि, मुझे प्राप्त हो जाएगा। So with that this chapter is kind of close. We'll read the last slok which is at the end of each chapter. Just go briefly what Bhagwan has said in this chapter. So there are 2 things, Raj Vidya and Raj
So if we need to know what is Raj Vidya, so there is a shlok 9.4. If we go to fourth shlok of this chapter, very quickly we'll just recap and then the chapter is almost done. So fourth shlok. Maya tat idam sarvam मया तत्मिदं सर्वं jagat jagadavyam avyaktamurtinah जगद व्यक्तमूर्तिना matasthani sarvabhutani मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः. न चाहम तेष्वस्थितः. और हे अर्जुन, मुझ सज्जितानंद परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं. All this world is pervaded by me in the unmanifested form. All beings dwell in me and I do not dwell in them. Yeah, so this is the secret and this is the Raj Vidya. This is the highest knowledge. There is no knowledge beyond this. Ki Bhagwan is this example of golden chain. Every chain has the same gold. Chain could be different, small chain and 18 karat, 24 karat, 5,000 ki hogi, $5,000, maybe $10,000, $1, maybe it's just a poly. But the gold is in all of them. But they are all different, name and form. But the essence is gold. So that's what Bhagwan is saying. Avyakta Murti Nam. But I am like unmanifest. Hum sab mein Bhagwan is there in unmanifest form. And the example is given by the philosophers. The sun, because all the plants and vegetables, everything, even including us, the entire kingdom is because of sun. If sun is not there, we'll all die, especially the plant, right? Just example. Every flower is different. Rose or lotus or whatever, marigold, every flower is there because of the sun, the energy of sun. So sun is not visible in those flowers. They are all different. They are all alive, but sun is present in them in the form of energy. Whatever, sun is present in all of us in the form of vitamin D. But you cannot say, oh, here is the sun. That's what Bhagwan is saying. The example with the but like the water is in ice. You don't see ice. Ice is ice. It is all water. But it is ice. The form is ice, but it is all water. So same thing. We are all different, but we are not separate. We are connected by that satta, and that is the Raj Vidya. That's what this shlok. I mean, every shlok is that, but this shlok is particularly. And what is the second is 9.22, which is very famous shlok. So we'll read that also because we are almost at done the chapter. वो सब मंदिरों में लिखा रहता है, very famous shlok. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम. 22 shlok. 22, okay. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते. ये जनाः पर्युपासते. तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. योगक्षेमं वहाम्यहम्. और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं. और योगक्षेम की टिप्पणी है, भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की दीक्षा का नाम क्षेम है. To those persons who worship me thinking of nothing else, to those ever seeking union, I grant them yoga and shame, which is the union and supreme bliss. Yeah. So to be this is like whatever we read, both the translations are at a very high level. But if you have to do it at the lower level, like so simple is that there are the sansar means the world is yogakshem. Yoga means apraptasya praptam, which is I don't have, I acquire. And acquiring is yoga, right? That's the whole word. Kshem means protection. So praptasya rakshanam.
Apraptasya prapnam is yog. I want to acquire something, and if whatever I have acquired, I want to protect it. There is a kshema. So praptasya rakshanam. That's sansar. एक कार मुझे खरीदनी है, आई विल पुट ऑल द एफर्ट्स, और जो भी मॉर्टगेज लोन सब करने के बाद कार ले लूंगा. नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम टू प्रोटेक्ट द कार, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. उसमें डैमेज हो गया तो वो कार से मजे, जब ली तो मजा आ गया, जब उसमें प्रॉब्लम हुई, डैमेज हुआ, कुछ हुआ, तो फिर दुखी हो गए. क्षेम. We can expand this example to everything in life, whether it's clothes or whether it's my child or my spouse, my house, everything is, there is a yog, there is a kshema, this is sansar. तो हम इसी में उलझे रहते हैं. So भगवान से, and that is the problem, right? And Bhagavan is saying very simple, this is Raj Vidya Raj Guhya. This is shlok, another shlok which says the secret is that ki you are taking this responsibility on your head. So you're आप परेशान हो, give me the responsibility. You just work. Because इसलिए हमने भगवान को हमारे, like in शास्त्रों language we says भगवान is कर्म फल दाता. I had to just कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. भगवान ने पहले कहा, you just work. That is your duty. That's it. मा फलेषु कदाचन. You are anxious about the result, and in that your efficiency of performing duty is going down, Arjun. You're worried about Bhishma mar jayenge. That's the reason you are not able to fight. So Bhagavan says, I'll make sure that you're clear, then only we'll go for the war. Otherwise, you will not be efficient. Exactly, it applies in everything in life. So that's what Bhagavan is saying, कि प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना योग क्षेम करना चाहते हो. ये जो भक्त है वो कहता है आपकी मर्जी, मैं तो काम कर रहा हूँ, जो भी जैसा भी रिजल्ट होगा, आप भगवान कर्म फल लाता है. And there is a story where we all know that वो एक राजा के, the same, वो राजा went to the guru, he said, I'm very frustrated these days and बहुत प्रॉब्लम है, like there are so many problems and it is very difficult to handle the role of a king. So राजा ने बोला क्या प्रॉब्लम, बोला no, there is I just cannot do that. So Guruji was smart, and Guruji knew that you have a quality to be a king. You cannot make everybody as a king or president or the leader, right? So Guruji said, okay, can you do one thing? Guruji आप आज्ञा दीजिए, मेरी आज्ञा मानोगे? Yes. Okay, now from tomorrow onwards, transfer all your property straight in my name, legally. So, okay, he transferred everything to Guruji. Guruji said, now you become my servant, right? Because I am the owner of this. Yeah, that's no problem. Okay, now I give you the duty. What duty? What exactly you are doing as a king? Now you see, because now he's not the owner. The problem was that, I lose something. Now everything is good. It's an anecdote, but the message here Bhagavan is saying, जब तक तू खुद चाहेगा करना. There is a small story कि भगवान एक बार बैठे थे, सत्यभामा उनकी पत्नी, कृष्ण, स्टोरी वेरी फेमस है, भोजन कर रहे थे. इतने में मतलब एकदम भगवान ने एकदम से उनको लगा कि उनका एक भक्त मिलने आ रहा था, और वो जब आ रहा था तो he was a poor guy like Sudama. So a lot of people on the street, they just making fun of him, or they started like throwing a stone on me. He's like a kind of an ordinary guy. तो भगवान ने एकदम से, भगवान को लगा कि अरे मेरा भक्त आ रहा है, उसको कोई लोग पत्थर मार रहे हैं. तो भगवान एकदम से दौड़े. तो उनकी पत्नी ने बोला कहाँ जा रहे हो, भोजन तो पूरा करो. नहीं नहीं, मेरे भक्त को लोग मार रहे हैं, बचाने जा रहा हूँ. फिर दौड़ तक गए, फिर रुक के वापस आ गए और भोजन करने लगे. उनकी पत्नी बोली क्या हुआ, आप तो दौड़ के गए थे. उसने कहा नहीं, मैंने देखा कि उसने पत्थर उठा लिया जवाब देने के लिए. तो मैंने कहा जब वो जवाब दे ही रहा है तो फिर मैं कर लेगा. योगक्षेम वहां में हम, मैं योगक्षेम का वहां करूंगा, लेकिन उसके लिए मत भक्त मत परायण मद मना मद याजी, लास्ट श्लोक बोला वो सब करेगा तो योगक्षेम में रूप. इट लुक्स लाइक वेरी फिलोसॉफिकल, बट people have proven this in our families. And last time I gave the example of my mother. I have seen my own mother, like last 15 years of her life. She is absolutely so peaceful. कुछ भी हो रहा है, राम जी की मर्जी. It takes time. अभी तो कर रही थी, पर one time she was a tiger mom. I know that when we were kids. But how she changed just because this Adhyatmik Yatra. And we feel blessed to see such a character, right? And we all see in our families and everywhere. A lot of people are like that. So Bhagavan says, Yoga Kshem Vahamyaham. That's the secret. क्योंकि वो एक आदमी को, and he will stop here. एक आदमी को, he was carrying the weight
बहुत हैवी था, उसके सिर पे रख के, जैसे इंडिया में जाते हैं लाइक कंट्री साइड. So somebody said कि oh this is very heavy and you are such a nice person, so I have a horse, take the horse, and why do you carry the weight? He said okay. But उसने देखा कि बेचारा हॉर्स भी बेचारा बहुत like he was very like compassionate guy. He said कि अरे घोड़े के ऊपर क्यों इतना वजन डालना. तो उसने वजन अपने सिर पे रख लिया. उस आदमी ने कहा, अरे तो अपने सिर पे घोड़े पे, नहीं घोड़े पे और क्यों वजन रखना. अरे when you are sitting on the horse, whether you keep your on your head and horse, it's on the horse itself, right? तो हम सब उसी आदमी की तरह हैं कि हम पूजा तो करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, सिर्फ बोलते हैं, वजन अपने ही सिर पे रखे हुए योगक्षेम का. तो भगवान कहते हैं ठीक है योगक्षेम, तेरे को वजन तेरे को वहन करना है तो तू वहन कर, तू नहीं करेगा तो अहम वहामी, मैं करूंगा. That is Rajvidya, that is Raj Yoga, and that's what the teaching is. So we'll stop here with this and then continue 10th chapter next week. So we'll read the last slok and then stop here. Last slok means at the end of every chapter there is a shlok. Om Tat Saditi. Om Tat Saditi. Srimad Bhagavad Gitasu. Srimad Bhagavad Gitasu. Upanishad. Upanishadsu. Brahma Vidyayam. Brahma Vidyayam. Yoga Shastre. Yoga Shastre. Shri Krishna Arjuna Samvade. Shri Krishna Arjuna Samvade. Rajavidya. Rajavidya. Rajguhya Yogo Nama Navodhyayah. So there is Navodhyaya. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om. 10 chapter. So संसार, तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने यही बात बोली है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाने को, योगक्षेम दो पाटन, टू ग्राइंडिंग व्हील्स योगक्षेम, इसमें फंसे रहोगे तो तुलसी कबीरदास जी के दो पाटन के बीच में साबत बचाना. तो तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के लड़के जो कमाल ने उसको मॉडिफाई किया था उस दोहे को, कि देन व्हेन देयर इज अ स्पिंडल इन द मिडिल, अभी हम बीच में जो गेहूं रहता है, बट स्पिंडल में जो चिपक जाता है वो बच जाता है. अभी हम मिक्सर में भी देखते हैं, द ग्रेन्स व्हिच आर ऑन स्पिंडल दे आर ग्रेन, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्रश्ड. सो ही मॉडिफाइड दैट, राइट. चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, जो कीलन से लपटा रहा वो साबत ही बच जाए. जो कीलन मीन्स स्पिंडल से, जो भगवान को पकड़ के रहेगा वो साबुत बच जाएगा, अदरवाइज योगक्षेम की चक्की में पिसते रहोगे, राइट. So that's what we'll just do 2 minutes of dhyan and stop here. Same, our dhyan is from this 5 senses and the sansar, which the senses mean sansar, going from sansar to the sakshi swarup, which is our swarup, and which is ananda swarup basically. So yatra is from the sansar to the ananda swarup. So keep the focus on the tip of the nostril and think of Prithvi Tattva, which is, Prithvi is the grossest element of Paraprakriti of Bhagwan. Now shift focus to the tip of the tongue and bring Jal, image of Jal Tattva in mind. Now shift focus to the eyes and bring image of Agni Tattva, which is Surya Bhagwan or any Diya or Agni. Now shift focus to the skin and we can think of or we can feel Vayu Tattva. We cannot touch Vayu, we cannot see Vayu, but we can feel Vayu on skin, which is Tvacha is the 4th element and 4th sense, and Vayu is the 4th element. You can feel Vayu on skin. Now shift focus to the ears and think of space, which means sound. Sound travels in space, so you can hear some sound. That means there is a space around us, inside us. Now Bhagavan says, this is the 6th chapter, that you think that you are not these senses, you are not the mind behind these senses. By doing this, we are shutting off the senses, not the buddhi, not the ahankar, which we call namaskuru, not the chitta, which is the memory, which is whole our
character, human character. The memory is nothing but human character. I am not this, I am the Chaitanya Atma. And Bhagavan says, in this state where all the senses are quiet, mind is quiet, this quietude, Bhagavan says, Yukta Asita Matpara. Do a Brahma Vichar, is Bhagavan ka dhyan, and Matpara means, again, Matpara same, Parayana. And Bhagavan is the only goal. Or we can say, I am that Satchidananda Atma, that is the only goal. Could be Om, could be Gayatri Mantra, anything. All this is all Bhagavan's form. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू संजय जी।